Good morning once again. This is the first chapter of civics in class 9, that is democracy in the contemporary world. Do you know what is the meaning of this chapter? Democracy in the present world. Okay, democracy in the present age. Contemporary means present age. So, this is the meaning of this chapter. Now, at first, we will read here overview. Overview means what is in this chapter, what we are going to read about this. So almost the overview of this chapter is in the first chapter, first century, last 100 years, last upcoming last latest 100 years, you can say, democracy has expanded itself during world half of the world, whole world. In those countries, those are independent countries. So this is the journey of democracy in latest 100 years, and the journey of the democracy is very interested, because in, do you think that someone in democracy has expanded in half of the world, but it is his journey of democracy is not smooth and straight. A lot of ups and downs that happen in this world, in the with the democracy in this journey. यानी कि पिछले 100 साल में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट अच्छा हुआ। जितने भी दुनिया के इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसमें लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है, वहाँ अभी डेमोक्रेटिक सेटअप हो चुका है। बट ये जो 100 साल का जर्नी है डेमोक्रेसी का, जिसमें डेमोक्रेसी ने यहाँ इतना सफ़र तय कर लिया है, ये स्ट्रेट यानी कि एकदम साफ सुथरा रास्ता इसका नहीं था। इसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन उसको देखने को मिला। जिस समय बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप को हटा दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया, फिर बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप आया, बहुत अच्छे तरीके से आया, ये सारी चीज़ें हुई। सो दैट आर इंटरेस्टेड, and we will we will know about this journey in this chapter, and we will also know that what is the scenario of democracy in the contemporary world, that means present day. This is the chapter regarding about this things. So we will only, at first, there are two tales. Tales means stories. There are two tales of present here, that is that will have to know according to your syllabus. The first tale of Chile, that is a South American country, and the second one is Poland. So at first we will know about Chile. So what happened in Chile, and how the democracy setup has been overthrown by the military coup, and how the democracy came back in journey in Chile. So this is the chapter regarding this. So tales of the democracy in Chile is very interested. Actually, Chile was a democratic country, and his elected president, was a very nice person, fabulous, tremendous person, and he was working very well. He was all the policy of the party whose name was uh, Socialist Party of Chile. The leader, founder, and socialist. The name of the president of Chile, and also he was the founder of Socialist Party of Chile, whose name was uh, Allende. And Allende was a very fabulous man. He was a very honest person. He was elected uh, president of Chile in a democratic setup. So he was a very
and his all policy, that all promises that he make with the people of Chile, he was working according to them. So he done a tremendous work for the welfare of Chile and Chile's people. So, but a lot of country outsiders like a big country USA was unhappy with him. They are very unhappy with him because they they are not doing according to USA. Uh, Alan Day was working for his nation, working towards promising, working for fulfilling the promises of Chile's person, not for USA. So USA was unhappy. So USA started to fund a military coup of Chile. एक मिलिट्री कॉप था चिली में, उसको फंड करना स्टार्ट किया, एंड दे आर spreading a trap, and in this trap, according to this trap, they finally uh, they are being shooted by the army of Chile, and that was very sad news for Chile and Chile's person also, and he was overthrown, and after overthrowing, he was said to resign from his post. So he refused to resign because he said, I am the elected president. Why should I resign? If the Chile's person will create like this situation, then I will resign. I will no resign in any force, in any pressure that is created by the military coup of the Chile. This is the story that is happening in the Chile. So he understood what is going in the future in the some days, and the 11th September 1973 he understood what is going to happen. So before arresting himself, he decided to address the person of Chile. So he decided to person of, and he gave a speech for Chile person, and this speech was on the radio. And after giving a speech, this was the last photographs of this gentleman whose name was Alan Day, and he was uh, he was shooted by these army men who surrounded him. You can see these photographs. The the photographs telling a lot of things. The Alan Day is surrounded by many army officers who has gun. They are gunned down by the Alan Day was gunned down, shot down by the army of Chile, and before uh, being shooted, he he gave a speech, and his speech was here. So basically, for your convenience, I want to express all these things, all this story in Hindi also. So basically ये स्टोरी है कि हम लोगों को इस चैप्टर में दो टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी की दो कहानियाँ पढ़नी, जहाँ पे डेमोक्रेसी डेवलप हुआ, फिर डेमोक्रेसी सेटअप को डिमोलिश किया गया यानी कि गिराया गया, और फिर से डेमोक्रेटिक सेटअप वापस आया। तो ये स्टोरी चिली का है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, और एक दूसरी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे वो पोलैंड का पढ़ेंगे। तो स्टोरी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। तो ये जो दूसरा स्टोरी फर्स्ट स्टोरी है वो चिली का पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पोलैंड का जानेंगे। तो बेसिकली चिली का स्टोरी ये है कि चिली के जो प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वो उनका नाम था सैल्वेडोर एलेंदे। एलेंदे शॉर्ट नेम था उनका, यू कैन रीड हेयर। तो एलेंदे जो थे वो एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे, और वो चुनाव जीत करके वापस आया थे, इलेक्शन जीत करके आया था। ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और वो सारी काम जो वो अपने सारे काम कर रहे थे, उनकी जितनी भी प्रोमिस उन्होंने अपने चिली के सिटीजन से की थी वो सब पूरा कर रहे थे, और चिली के
लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, जो अभी पढ़ेंगे इसमें हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे काम भी कर रहे थे जो अपने देश के लिए तो अच्छा था, लेकिन यूएस को वो पसंद नहीं आता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनसे खुश नहीं था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या करता है, चिली के मिलिट्री कूप को एक फंड करना शुरू कर देता है, चुपके से पैसा देना शुरू कर देता है कि किसी भी तरह से इसको ओवरथ्रोन करो, यानी कि इसको हटाओ सत्ता से और तुम वहाँ पे बैठ जाओ, ताकि तुम मेरे अकॉर्डिंग फिर काम करो। ये जो हो रहा था वो यूएसए की साजिश थी। और फाइनली जब उसको फंड मिलने लगा चिली के आर्मी ऑफिसर्स को, तो वो सब जाल बिछाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली 11 सितंबर 1973 को सुबह जाता है और उनके जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर चिली की जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वहाँ पे आर्मी घेर लेता है, उनको सरेंडर करने के लिए उनको रिज़ाइन करने के लिए बोलता है। तो वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली, और चिली की पब्लिक ही डिसाइड करेगी हमको रहना चाहिए प्रेसिडेंट या नहीं, कोई और नहीं इसको डिसाइड कर सकता है, क्योंकि हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली हैं। तो फाइनली उनको रिज़ाइन करने के लिए जब फोर्स किया जा रहा था, तो वो समझ जाते हैं कि अब हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत भी हो। तो फट से एक वहीं पे एक रेडियो प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पे रेडियो पे एक स्पीच देते हैं वो, और वो स्पीच चिली के सिटीज़न के लिए देते हैं, ताकि उसको कुछ बता सके। और उसके बाद कुछ उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द almost short, almost a story that is we are going to read in this chapter. So let's read the last speech of Chile president, what he said at the morning of 11th of September 1973. The worker of my country. सबसे पहले उन्होंने वर्कर्स को यानी कामगारों को संबोधित करते हैं। और आई हैव फेथ इन चिली, मेरा विश्वास चिली में है, मतलब अपने देश में पे मुझे विश्वास है। एंड इट्स फ्यूचर, और इसके भविष्य को लेके भी हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा ही होगा। अदर मैन विल ओवरकम दिस डार्कनेस एंड बीटर मोमेंट, अभी का जो ये समय खराब समय आया है, बीटर मोमेंट आया है, उसको और आगे के जनरेशन के जो लोग हैं उसको डेफिनेटली इसको हरा देंगे। एंड व्हेन ट्रीजन आस्क टू प्रिवेल कीप इन माइंड दैट मच सूनर देन लेटर द ग्रेट एवेन्यू विल अगेन बी ओपन्ड थ्रू विच विल पास फ्री मैन टू कंस्ट्रक्ट अ बेटर सोसाइटी। और जो अपकमिंग जनरेशन है वो इन सारी चीज़ों को हटाएगा, जो अभी हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, उसको हरा करके और फिर से चिली को एक अच्छा सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करेगा चिली के लिए, और एक अच्छा समाज चिली को मिलेगा। लॉन्ग लिव चिली, यानी कि चिली जिंदाबाद। लॉन्ग लिव द पीपल, पीपल मतलब चिली के लोग जिंदाबाद। लॉन्ग लिव द वर्कर्स, और हमारे देश के वर्कर्स, हमारे पार्टी के वर्कर्स, उनको वो भी जिंदाबाद। ये उनका लास्ट वर्ड था। और इसके बाद वो अरेस्ट कर लिए गए और उनको आर्मी पर्सनल जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने शूट कर दिया, गोली मार दिया। दीज आर माई लास्ट वर्ड, वो ये भी बतला रहे थे ये मेरे लास्ट वर्ड हैं। आई एम सर्टेन दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन, और वो बोलते हैं कि मैं निश्चिंत हूँ कि जो मेरा सेक्रीफाइस है वो इन वेन मीन्स होता है यहाँ पे व्यर्थ, बर्बाद होना। तो इन वेन फ्रेज है जो कि आप लोग लिख भी सकते हैं, ये यहाँ पे इन वेन दिया हुआ है ना, इन वेन, उसको बुक को पढ़ भी सकते हो घर में। इन वेन आई एम सर्टेन, मैं निश्चिंत हूँ, दैट द वेरी लीस्ट मतलब बहुत जल्दी, इट विल बी अ मोरल लेसन, ये एक नैतिक सीख होगी। दैट विल पनिश, जो कि पनिश करेगा, दंड देगा किसको, फेलोनी,
कोवाडिस, ये जो कायरतापूर्वक हरकत किया जा रहा है, कोवाडिस मीन्स वो होता है ट्रीजन, जो विश्वासघात किया जा रहा है, वो इन सारी चीज़ों को जो है सो पनिश करेगा। क्या पनिश करेगा? मॉरल लेसन पनिश करेगा। सो दीज आर सम एक्सट्रैक्ट, और ये जो कुछ वर्ड्स थे जो बाहर आए उनके, फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ द सैल्वाडोर एलेंडे, जो प्रेसिडेंट थे उनका ये लास्ट स्पीच था। ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ चिली, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये साउथ अमेरिकन कंट्री की कहानी है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ चिली का स्पीच था, जिनका नाम था एलेंडे, शॉर्ट नेम था। द स्पीच वॉज गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, और ये जो स्पीच दिया गया वो 1973 को दिया गया। द डे दिस गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन, इसी दिन इस गवर्नमेंट को गद्दी से हटा दिया गया था बाय फोर्स, बाय द मिलिट्री के द्वारा। एलेंडे वॉज द फाउंडर, एलेंडे जो थे वो फाउंडर थे, फाउंडर लीडर ऑफ द सोशल पार्टी ऑफ द चिली। सोशल पार्टी ऑफ द चिली यानी कि जो पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट में थी, उस पार्टी के फाउंडर लीडर थे। एंड लेड द पॉपुलर यूनियन कोalition टू द विक्ट्री, और उन्होंने ही पॉपुलर यूनियन के साथ कोलिएशन करके विक्ट्री वहाँ पे जीत दिलाई थी चिली अपने पार्टी को, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहाँ हुआ था 1970 में। तो उस समय आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, एलन दे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन। जब उन्होंने उनको जब से वो इलेक्शन जीते और प्रेसिडेंट बने, एलन दे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन, और एलन दे बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन लिए टू हेल्प द पुअर्स एंड वर्कर्स। किस लिए? हेल्प, पुअर को हेल्प करने के लिए और वर्कर्स को हेल्प करने के लिए। दी वर्कर्स मीन्स मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं, कामगार। दीज इंक्लूडेड रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, उन्होंने बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज़ को भी लाया जो कि रिफॉर्म करता था एजुकेशनल सिस्टम को। अपने वहाँ के शैक्षणिक एजुकेशनल सिस्टम जो था वहाँ का अच्छा नहीं था। हमारे इंडिया में भी एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो वो रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत सारे काम किए। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए फ्री मिल्क का भी उन्होंने व्यवस्था वो दे रहे थे, गवर्नमेंट दे रही थी। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन द सेंस कि वहाँ पे जो बहुत सारे लोग लैंडलेस थे और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा ज़मीन था, तो उन्होंने वो लैंड जिसके पास एक्सेस ऑफ लैंड था वो ले करके जो लैंडलेस फार्मर थे उसको वो लैंड दिए। ये सब चीज़ उन्होंने अपने समय में किया। ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज, वो फॉरेन कंपनी को अपोज कर रहे थे। किस चीज़ के लिए विरोध कर रहे थे फॉरेन कंपनीज को? टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री, और उनके कंट्री से जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे, वो कॉपर भारी मात्रा में था। कॉपर यानी तांबा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बहुत सारी फॉरेन कंपनी वहाँ से लेके जा रही थी कुछ ट्रेड के थ्रू, तो उसको भी उन्होंने रोका। द लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार वहाँ के थे, द रिच एंड द चर्च अपोज हिज पॉलिसी, तो यहाँ पे गरीब लोग तो उनका सपोर्ट कर रहा था, अच्छा वर्कर्स था, जो कामगार लोग था, मिडिल क्लास था, वो सपोर्ट कर रहा था। बट वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, इसके ज़मीन को लेकर के वो लैंडलेस लोगों को दिए, वो तो रिच यानी कि रिच सोसाइटी जो था, यानी कि अमीर तबके के लोग, एंड द चर्च अपोज हिज पॉलिसीज, और चर्च ने भी उनके पॉलिसीज को अपोज किया। Some other political party in Chile also opposed his government. कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी थी, उन्होंने भी उनको उनकी गवर्नमेंट को अपोज किया। और इस तरह से जो काम, बहुत सारे उनके अपोनेंट्स भी थे उस कंट्री में। मिलिट्री कूप ऑफ 1973, ऑन द 11 सितंबर
On the morning of 11th of September 1973, the military took over the seaport. वो जो सी पोर्ट वहाँ पे था उसको अपने हैंड में ले लिया, वहाँ आया। डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री। वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री था वो उसको अरेस्ट कर लिया गया मिलिट्री के द्वारा। व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस, जब डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस जाते हैं तो द मिलिट्री कमांडर्स आस्क द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। और जो मिलिट्री के टॉप कमांडर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि आप रिजाइन करो। और वो जो रिजाइनिंग था और लीव द कंट्री, और इस कंट्री को छोड़ करके चले जाओ। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री, टू हिज लाइफ, वो प्रेसिडेंट चिली के जो प्रेसिडेंट थे एलेंदे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये उनके कंट्री के लिए भी खतरनाक है और उनके लाइफ के लिए भी। ही एड्रेस्ड द पीपल ऑन द रेडियो। उन्होंने एड्रेस मतलब भाषण देना, स्पीच दिया एक, और अपने संबोधित किया अपने देश के लोगों को रेडियो पे। पार्ट ऑफ विच वाज वी रेड इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे क्या उनका स्पीच था। देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस। उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स हाउस को मिलिट्री घेर लेता है। एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट। और क्या करता है, बॉम्ब फेंकना स्टार्ट कर देता है। द प्रेसिडेंट एलन दे डाइड इन द मिलिट्री अटैक। फाइनली क्या होता है, एलन दे जो है सो मर जाते हैं। दिस वॉज द सेक्रीफाइस ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज लास्ट स्पीच। और यही सेक्रीफाइस वो जो देने जा रहे थे उसके बारे में वो लास्ट स्पीच में बोल रहे थे, क्योंकि वो पता था कि हम मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने तो देश छोड़ा नहीं, मैंने तो रिजाइन किया नहीं, तो फाइनली तो हमको मार ही दिया जाएगा। A government elected by the people was overthrown by the military through the conspiracy and violence. Then फाइनली ही हुआ क्या कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो था, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन हुआ था और बढ़िया से इलेक्ट किया गया था पीपल्स ऑफ चिली के द्वारा, उसको क्या किया गया, मिलिट्री के द्वारा कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र और वायलेंस, हिंसा, उसके थ्रू उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया, गद्दी से हटा दिया गया, उनको सत्ता से हटा दिया गया। What took place in Chile on 11 September 1973 was a military coup। और वो जो सारी चीज़ें टुक प्लेस मतलब उस जगह को वहाँ पे होना, चिली में जो हुआ वो सारी चीज़ों के वो कौन था करने वाले, मिलिट्री कूप यानी कि मिलिट्री का एक ग्रुप, समूह, है ना। द जनरल ऑगस्टो पिनोचेट, द जनरल ऑगस्टो पिनोशे जो थे वो एन आर्मी जनरल थे। लेड द कूप, वो उस कूप के यानी कि कोर ग्रुप के जो आर्मी के ग्रुप थे, कूप था उसको कूप ही बोला जाता है, उसके लीडर थे। द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विद द Allende rules and is known to have supported to and funded activities that led to coup। अब ये गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था वो नाखुश था किनसे, एलेंदे से, एलेंदे के शासन से। हालांकि उससे यूएस को तो इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ये इलीगल था, बट व्हाट हैपन इज दैट इज़ वेरी सैड एंड स्टोरी। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया, जब देखा कि ये एलेंदे मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग रूल नहीं कर रहा है, देन ही सपोर्टेड एंड फंडेड द एक्टिविटीज़ दैट लेड टू द कूप। एक कूप बनाया गया और उसका फंड कौन किया, उसका फंड किया अमेरिका, पैसे उसके लिए अमेरिका लाया, फंड किया, पैसे देना, फंड करना मतलब। और पिनोशे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। और इसके बाद जब एलेंदे के डेथ के बाद पिनोशे जो कि आर्मी जनरल था वो प्रेसिडेंट हो गया वहाँ का,
चिली का फॉर नेक्स्ट 17 ईयर, 17 साल के लिए वो प्रेसिडेंट हो गया। फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स। अब एक गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था वो डिथ्रोन ओवरथ्रोन कर दिया गया, हटा दिया गया, और ऑल द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, और मिलिट्री ऑफिसर्स को पावर दे दिया गया। दे कुड डू एज दे विश, और वो जो मन आ रहा था वो कर रहे थे, कर सकते थे। नो वन कुड क्वेश्चन देम, और कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता था, क्योंकि दस अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वॉज इस्टेब्लिश्ड इन चिली। इस तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है, मिलिट्री यानी कि मिलिट्री तानाशाही जो है इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट स्थापित हो गया कहाँ? चिली में, यानी कि डेमोक्रेटिक्स डिमाइस ऑफ डेमोक्रेटिक्स एंड ओरिजिनेशन ऑफ dictatorship that is happened in Chile. Pinochet governments tortured and killed several of those people who supported Allende and those who wanted democracy to be restored. पिनोशे ने क्या किया? पिनोशे का गवर्नमेंट जो था टॉर्चर किया, मारा, जान से भी मारा बहुत सारे लोगों को। सेवरल मीन्स अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। वो सारे लोग कौन थे? वो एलेंदे के सपोर्ट करने वाले थे, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे और अच्छे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड, और वैसे लोगों को भी टॉर्चर और मारा गया जो चाहते थे कि फिर से गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए, ये मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमारे देश से ख़त्म हो। दिस इंक्लूडेड जनरल एल्बर्टो बैचलेट, और इसमें से एक ऐसे भी जो थे वो आर्मी ऑफिसर थे, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उनका नाम था जनरल एल्बर्टो बैचलेट। हालांकि वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे ऑफ द चिलियन एयरफोर्स, चिलियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे, इनका नाम था एल्बर्टो बैचलेट। वो भी एयरफोर्स के थे, बट वो अपोज कर रहे थे इस डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री गवर्नमेंट को, एंड दे वांट डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड इन आवर कंट्री। सो मेनी ऑफिसर हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द कूप, जो मिलिट्री कूप ज्वाइन करने का मतलब कि उस कूप, वो कूप जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का था, उसको ज्वाइन करने से जो रिफ्यूज कर रहे थे, उसमें से एक वो कौन थे? वो थे चिलियन एयरफोर्स के ऑफिसर एल्बर्टो बैचलेट। एंड जनरल बैचलेट्स वाइफ एंड डॉटर वर पुट इन द प्रिजन एंड टॉर्चर। अब जनरल बैचलेट के जो वाइफ और वो डॉटर्स थी, उनको पुट इन द प्रिजन यानी कि जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया। More than 3,000 people were killed by the military, और 3,000 people जो है सो मार दिया गया by the military. Many more were reported missing, और बहुत सारे लोगों के बारे में रिपोर्ट किया गया कि वो मिसिंग है। No one knows what happened to them, और कोई नहीं जानता है कि क्या हुआ उनके साथ। Here some of the questions are present. Did the army have any legal right to arrest the defense minister of the country? क्या आर्मी को कोई राइट है डिफेंस मिनिस्टर, कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करने का? नो, देयर इज नो राइट ऑफ आर्मी। शुड द आर्मी हैव पावर टू अरेस्ट एनी सिटीजन? क्या आर्मी को पावर है किसी भी सिटीजन को अरेस्ट करने का? नहीं, आर्मी का नहीं है ये पावर है। ये लोकल पुलिस करती है, एंड ये जब वो रूल वायोलेट करता है और वो गवर्नमेंट के देखरेख में होता है। लोकेट द सेड चिली ऑफ मैप। अब आपका जो एक्टिविटी है इसमें कुछ वर्क दिया गया है, चिली के मैप को लोकेट करना है वर्ल्ड मैप पे, उसको सेट करना है। इन विच अ स्टेट इन आवर कंट्री हैज
shape similar to Chile, or which state in our country has a shape similar to Chile? और जिस स्टेट हम लोगों के स्टेट मतलब कंट्री में, हम लोगों की कंट्री में ऐसा कौन सा स्टेट है उसका शेप जो है चिली से मिलता जुलता है, ये भी देखना है, ये भी लोकेट करना है, ये बताना है। फॉलो द न्यूज़पेपर फॉर 1 month एंड collect the items related to any country in Latin America. Did you find the news coverage of adequate? अब सेकेंड वाला तो एक्टिविटीज़ हम नहीं कहेंगे, बट फर्स्ट वाला आप दे सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के घर में भी न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर तो नहीं आता होगा, बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा। कलेक्ट करना है 1 month का न्यूज़पेपर्स का, उसका कटिंग करना है। लैटिन अमेरिका का कोई भी न्यूज़ हो, लैटिन अमेरिका की किसी भी कंट्री का न्यूज़ हो तो उसको कट करके रखना है, उसको पढ़ना है। एंड डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ कवरेज एडिक्वेट? और कुछ न्यूज़ कवरेज मिल रहा है वहाँ का पर्याप्त रूप से, ये देखना है। सफिशिएंट न्यूज़ कवरेज मिल रहा है हम लोगों के देश में, चिली या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री का। सो हियर नाउ this is the story of Chile. It's a very saddened story. Restoration of democracy. अब यहाँ पे जो सेकंड फेज होता है, फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा 1973 में 1970 में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ और उसमें एलेंदे इलेक्ट हुए, एंड देन ही वर अरेस्टेड एंड डेड, he was dead, he was murdered by the military, and then the military establishment has established, military dictatorship has been established shifted in Chile, and a lot of things that happen is very cruel and very saddened thing that happened in Chile. These all things we know in the last phase, and now the military rule was established for 17 years, यानी कि 1971-73 से 70 ईयर आ जाता है। बट फिर इसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। ये जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फिर से कैसे रीस्टोरेशन मतलब फिर से रीस्टोर कैसे किया गया डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक सेटअप को वापस कैसे लाया गया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, सो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पिनोशेट जो कि मिलिट्री डिक्टेटर था वहाँ का, चिली का प्रेसिडेंट हो गया था, खुद से अपने आप को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर दिया था कि हम प्रेसिडेंट, डेजिग्नेट हो गया था प्रेसिडेंट के पोस्ट पे। तो वो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। पिनोशेट मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड, 17 ईयर के लिए तो एस्टेब्लिश कर लिया था, तो 17 ईयर वहाँ से 88 को जो है सो समाप्त होता है। ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम और इन 1988, और 1988 को उसको ऐसा लगा कि एक रेफरेंडम करा लेना चाहिए क्योंकि अब लोग हमको सपोर्ट करेंगे, ऐसा उसके मन में हुआ, ऐसा वो फील किया होगा। सो रेफरेंडम मीन्स होता है कि आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप जो है सो एक तरह से इलेक्शन ही होता है, बट उसमें इस तरह का होता है रेफरेंडम में कि डू यू वांट टू सी सम पर्सन एज ए प्रेसिडेंट और नॉट, यस और नो में करना रहता है। सो ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही वॉज इन दिस रेफरेंडम द पीपल वुड से यस, और वो एकदम पूरा कॉन्फिडेंट था। जो चिली का जो पिनोशेट था जनरल, जो कि मिलिट्री प्रेसिडेंट डिक्टेटरशिप में प्रेसिडेंट था, वो पूरा श्योर था कि यस, पीपल विल से यस, आई वांट टू सी हिम एज ए प्रेसिडेंट इन दिस रेफरेंडम, पीपल वुड से यस। इस रेफरेंडम में जो लोग हैं चिली का वो मेरे लिए हाँ कहेगा।
टू हिज कंटिन्यूइंग इन पावर, कि आप कंटिन्यू करिए पावर में रहिए। बट द पीपल ऑफ चिली हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। लेकिन चिली के गवर्नमेंट पब्लिक जो थे वो उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन यानी लोकतांत्रिक परंपराओं को उन्होंने नहीं भूला था। तो रेफरेंडम था कि आप फर्स्ट रेफरेंडम था कि डू यू वांट टू दैट डू कि क्या आप चिली के प्रेसिडेंट जो भी है डिक्टेटर उसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं या फिर से एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा विश्वास था कि मेरे लिए लोग हाँ कहेंगे और हम फिर से वापस कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पावर में। बट द पीपल ऑफ चिलीज हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, वो अपना डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस नहीं भूला था। देयर वोट वाज अ डिसिसिव नो टू पिनोसेट, और उन लोगों का जो वोट था वो डिसिसिव था यानी कि निर्णायक था। डिसिसिव मीन्स नो वन टू पिनोसेट, राइट, नो वन टू पिनोसेट। हाँ, कोई भी पिनोसेट के लिए यस नहीं कहा, सब कहा नहीं, मुझे ऐसा शासन नहीं चाहिए। दिस लेड टू पिनोसेट लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर। तो ये जो है डिसीजन, सबसे पहले पिनोसेट को लूज करना पड़ा, अपना पॉलिटिकल पावर उसके पास से चला गया, देन ही हिज मिलिट्री पावर्स, तब जाकर के उसका मिलिट्री पावर गया उसके हाथ से। द होप एलेंदे एक्सप्रेस इन द लास्ट एड्रेस वॉज रियलाइज्ड, और होप सो कि एलेंदे ने जो लास्ट एड्रेस किया था, मतलब लास्ट स्पीच कहा था मरने से पहले, वो रियलाइज़ किया गया था लोगों के द्वारा, उन्होंने भूला नहीं, अब वो फिर से सही हो रहा था। दैट फेलोनी कोवार्डिस एंड ट्रीजन वेयर फाइनली पनिश्ड, मतलब अभी जो गलत चीज़ें हो रही है, कायरता, विश्वासघात, फेलोनी मतलब एकदम आक्रामक चीज़ जो हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें को पनिशमेंट मिलेगा, और फाइनली पनिशमेंट मिला। दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ नो, पीपल से नो फॉर पिनोसेट्स, और फाइनली नो कहा। उनका बात सही हुआ, 17 साल के बाद ही सही बट सही हुआ। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रीस्टोर्ड, और फाइनली पॉलिटिकल फ्रीडम जो है रीस्टोर्ड हुआ, यानी कि लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिंस देन चिली हैज़ हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और तब से चिली जो है 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वहाँ हुआ, इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड, और उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्टिसिपेट किया। स्लोली द आर्मीज रोल इन कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में तुरंत तो नहीं हुआ, बट धीरे धीरे करके आर्मी का रोल वहाँ पे ख़त्म हो गया। आर्मी का रोल टू प्रोटेक्ट द नेशंस, दैट इज़ द रूल्स रोल ऑफ आर्मी इन अ कंट्री। इससे ज़्यादा आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, बस आपको नेशन का प्रोटेक्ट करने का ही, आउटसाइडर्स से प्रोटेक्ट करना है, यही आपका रोल है। इसके बाद आप पॉलिटिक्स में आना आपका रोल नहीं, दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर common citizen and for the future of any nations. So the finally army's role in the country's government has been eliminated. कंट्री के गवर्नमेंट से आर्मी का रोल वहाँ ख़त्म हो गया चिली से। एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर इंक्वायरीज इनटू पिनोसेट रूल्स। अब उस समय तक पिनोसेट प्रेसिडेंट तो नहीं थे बट आर्मी में थे, लेकिन जब पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया आर्मी का रोल गवर्नमेंट से, तब जा कर के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आया उन्होंने कोई प्रेशर फील नहीं किया, और तब जा कर के उन्होंने इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया कि इंक्वायरी हो पिनोसेट ने क्या क्या किया है अपने प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंशियल पीरियड में। सो दिस इंक्वायरी शोड दैट दिस गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट ऑल्सो वेरी करप्ट। और ये इंक्वायरी में पता चला कि ये जो पिनोसेट का गवर्नमेंट था ना केवल
ब्रूटल यानी कि क्रूर था, बल्कि बहुत ज़्यादा करप्ट भी था, यानी कि भ्रष्ट था। डू यू रिमेंबर अ लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर टू द बैचलेट्स डॉटर? हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक एयरफोर्स ऑफिसर थे और जनरल वेस्लेट्स और उनके डॉटर्स और उनकी वाइफ दोनों को इम्प्रिजेंट कर दिया गया था, पुट बिहाइंड द बार। तो उनको और टॉर्चर किया गया था, तो उसको बाहर निकाला गया। एंड दैट गर्ल वाज मिशेल वेस्लेट। और वो जो गर्ल थी, उनकी बेटी थी, उनका नाम था मिशेल वेस्लेट। एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड फॉर रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वो हमेशा डेमोक्रेसी के फेवर में थे। दैट टाइम ही चूज टू बी दे हैज़ टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ देम बी द मेंबर ऑफ कूप, मतलब कि कूप का मेंबर हो जाओ, मिलिट्री कूप का मेंबर हो जाओ, कुछ नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन था जेल जाओ। तो उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन जो कि आसान था उनके लिए वो नहीं चुना, और सेकंड ऑप्शन जो नेशन के लिए अच्छा था वो चुना, और वो जेल जाना पसंद किए। वो उन्होंने जेल में रखा गया, तो जेल ठीक है, जेल में रहे। फाइनली दिस टाइम ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ऑफ चिली इन जनवरी 2006। और 2006 में वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी जनवरी 2006 में, यहाँ की चिली की। एंड द मेडिकल डॉक्टर एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी द डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका में फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर पहले डिफेंस मिनिस्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट। तो डिफेंस मिनिस्टर भी वो यूएस में फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर भी वो बनी। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्टेड शी डिफीटेड दैट टाइम one of Chile's richest man. In this photograph of the victory speech, she is saying to her supporter। और यहाँ पे इसका विक्ट्री इमेज एक है, यही है वो लेडीज़, whose name is मिशेल वेस्लेट, who is the daughter of daughter of that Air Force officers who didn't choose to go there, join military coup, and he chose to be suffering for their nation. And their daughters, Mrs. Michel, put behind the bar by the military coup. So now they became the president of Chile in 2006, and this is the photograph that is taken in the 2006। और ये जो फोटोग्राफ्स है ये चिलीज रिचेस्ट मैन का है। इन दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में वो भी है, तो उनका भी फ़ोटो है ऑफ हर विक्ट्री स्पीच। और यहाँ पे ये विक्ट्री स्पीच दे रही है। जीतने के बाद जो लोग पब्लिक को स्पीच देता है तो वही है, काफ़ी खुश दिख रही है, काफ़ी पब्लिक के साथ खुश है यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने उनको चुना करा। शी इज़ सेइंग टू हर सपोर्टर। विक्ट्री स्पीच में अपने सपोर्टर्स को क्या कर रही है, प्रेसिडेंट्स बिकॉज आई वॉज विक्टिम ऑफ हैटेड, क्योंकि मैं विक्टिम रही हूँ, थी, हैटेड का घृणा का शिकार हुई हूँ, घृणा से पीड़ित हुई हूँ। सो आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट hatred and turn it into understanding, tolerance, and why not say it into love। इनका कहना है कि जो मैं जो हूँ, क्योंकि मैं वो जेल में रही थी, तो उन्होंने कहा मैं जो हूँ घृणा का शिकार हुआ, हैटेड का शिकार हुई थी, उससे पीड़ित हूँ। सो इन रिटर्न लोग हेट के बदले में हेट देते हैं, बट उन्होंने चूज़ किया कि माई लाइफ टू रिवर्स दैट हैटेड एंड टर्न, इस हैटेड और मतलब घृणा को टर्न कर दो किसमें, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस में, मतलब किसी को एक्सेप्ट करने में, टॉलरेट करने में। चलो कोई भी है, टॉलरेट करो पहले उसको। एंड वाई नॉट से इट लव, और क्यों नहीं इसको कहते हैं कि लव में, तुम हैटेड को लव में टर्न कर दो, और जो हेट करे उसको भी अच्छे से ट्रीट करो। ये उसका कहना था, इनका थॉट है। और दैट्स वाई
This is the wonderful thought. That's why she became the president of Chile, and must. This is the happiness is looking on his face. So students, this is your first video, and in the next video I will tell the story of democracy in Poland. So that's why we gave you two activities. One of them is most necessary, you should have to be do, and the second one is if you if you will do at least not for 1 month, I say just for at least for 1 week or 10 days you can do. From Hindi news also, if you are in your home Hindi news is available, then try to find on internet, on something else, whatever you can find the news of Latin America. If anyone news is finding on Latin America, then try to cut it and make an assignment. And the first assignment regarding the map, this is the first activity, that is you should have to set the Chile's map, which state in your country has, और सेट करना है चिली के मैप को। चिली के मैप को पहले समझ लेना, और उसको हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका मैप जो है चिली से मिलता जुलता है, उस स्टेट को हम सेट कर देंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा छायांकित कर देंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट ये assignment. And the next, try to then the last of this, at last I want to say that please read it again and again, and those meanings, all those meanings that is very tough, all those not tough, but all those meaning that all those vocabulary, those are very those are difficult according to you. I explained all of them in Hindi. I make of I, for your convenient, I also explain it in Hindi as well as in English. So I think that's it. So be safe at your home, and have patience, and still start your study. This is your first video, upcoming video. The next coming the next video will be on the story of Poland. So thank you.